السلام علیکم۔ آج ہم سوشل کے 11ویں سوال سے پڑھیں گے۔ یہ سوشل پیپر 2 ہے۔ کل میں 10 سوالات بول چکی تھی، اب 11واں سوال پڑھ رہی ہوں۔ حزب ذیل میں سے مغربی ساحلی میدانوں کو شناخت کیجیے۔ کونکن ساحل، کچکا ساحل اور مالابار ساحل۔ آپشن 1 ہے۔ آپشن 2 کورومنڈل ساحل، کاٹھیا واڑ ساحل۔ آپشن 3 ہے اتکل ساحل، کونکن ساحل اور مالابار ساحل۔ آپشن 4 ہے اتکل ساحل، کورومنڈل ساحل اور کاٹھیاواڑ ساحل۔ یہ سوال میں کل پڑھ چکی ہوں۔ اس کا آنسر ہے کونکن ساحل، کچکا ساحل اور مالابار ساحل۔ اب سوال نمبر 12۔ انسانی ترقی کا اشاریہ کی رپورٹ 2021 کے لحاظ سے حزب ذیل ممالک کے گروہ کو اعلیٰ انسانی ترقی کے اشارے والے ممالک میں شمار کیا گیا ہے۔ آپشن 1 ہے ناروے، سوئٹزرلینڈ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ آپشن 2 ہے چین، سری لنکا، برازیل۔ آپشن 3 ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، سری لنکا، بھوٹان۔ آپشن 4 ہے سوئٹزرلینڈ، سری لنکا، چین۔ آپشن دوسرا صحیح ہے، چین، سری لنکا، برازیل۔ اب ہم تیسرا سوال پڑھ رہے ہیں۔ سری کلچر سے مراد کیا ہے؟ ریشم کے ریشے حاصل کرنے کے لیے ریشم کے کیڑے پالنا۔ آپشن 2 ہے مچھلی کے تیل کو حاصل کرنے کے لیے مچھلی پالنا۔ شہد کی مکھی۔ آپشن 3 ہے شہد کی مکھی کو پالنے کا سائنسی طریقہ۔ آپشن 4 ہے بیجوں اور ترکاریوں کا سائنسی مطالعہ۔ آپشن فرسٹ صحیح ہے، ریشم کے ریشے حاصل کرنے کے لیے ریشم کے کیڑے پالنا۔ اب میں چوتھا سوال پڑھ رہی ہوں۔ حزب ذیل میں سے سبز گھر گیس یہ ہے۔ سبز گھر گیس کون سا ہے وہ بتانا ہے۔ آپشن 1 ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور آبی بخارات۔ آپشن 2 ہے سلفرک ترشا، نائٹروجن اور آکسیجن۔ آپشن 3 ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آپشن 3 ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن اور آکسیجن۔ آپشن 4 ہے میتھین، سلفرک ترشا اور آکسیجن۔ آپشن فرسٹ از کریکٹ آنسر، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور آبی بخارات۔ اب میں پڑھ رہی ہوں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5۔ حزب ذیل میں سے کون سی صنعت زیادہ تر ہگلی دریا کے کنارے واقع ہے؟ آپشن ہے سوتی کپڑے کی صنعت۔ آپشن 2 ہے پٹسن کی صنعت۔ آپشن 3 ہے ریشم کی صنعت۔ آپشن 4 ہے ایلومینیم پگھلانے کی صنعت۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے پٹسن کی صنعت۔ پڑھ رہی ہوں۔ حزب ذیل علاقوں میں ماہانہ اوسط درجہ حرارت سال بھر کم و بیش یکساں رہتا ہے۔ آپشن 1 ہے حیدرآباد اور ناگپور۔ آپشن 2 ہے وشاکھاپٹنم اور پاناجی۔ آپشن 3 حیدرآباد اور پاناجی۔ آپشن 4 ہے دارالجنگ اور بھوپال۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے وشاکھاپٹنم اور پاناجی۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے وشاکھاپٹنم اور پاناجی۔
सवाल नंबर 7। 3 मार्च 1933 को अडोल्फ हिटलर की जानिब से मशहूर इक़्तिदार की हवालगी का कानून लाने का मकसद। ऑप्शन 1 है जर्मनी में जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम करना। ऑप्शन 2 है हयालमार्शाफ्ट को जिम्मेदारी सौंपकर जर्मनी में माशी इस्लाहात लाना। तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में अमरियत कायम करना। और चौथा ऑप्शन है सियासी कारकुनों, मजदूरों की अंजुमन के कारकुनों और अक़लियतों खुसूसन यहूदियों को गिरफ्तार करना और इनको अज़ियत देना। ऑप्शन 3 सही आंसर है जर्मनी में अमरियत कायम करना। सवाल नंबर 8 है 20 जून 1798 को तीसरे स्टेट के नुमाइंदों ने खुद को ये करार दिया। 20 जून 1798 को तीसरे स्टेट के नुमाइंदों ने खुद को ये करार दिया। ऑप्शन 1 है कौमी असम्बली। ऑप्शन 2 है बादशाह लुई 18 के नुमाइंदे। ऑप्शन 3 है जाको बयान क्लब के अरकान। ऑप्शन 4 है डायरेक्टरी। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है कौमी असम्बली। अब मैं पढ़ रही हूँ 9वां सवाल। 1783 में बरतानिया ने इस माहदे पर दस्तखत करके 13 अमरीकी कॉलोनियों की आज़ादी को तस्लीम किया। ऑप्शन 1 है माहदा वियना। ऑप्शन 2 है फ्रैंकफर्ट का माहदा। ऑप्शन 3 है वर्साइल्स माहदा। ऑप्शन 4 है पेरिस माहदा। ऑप्शन 4 पेरिस माहदा सही आंसर है। अब मैं पढ़ूंगी 10वां सवाल। वो समाजी मुफक्किर जिसने मरकज़ी मंसूबों के ज़रिए जायदाद पर अवामी कंट्रोल करने की वकालत की। ऑप्शन 1 है बाबीफ। ऑप्शन 2 है फ्रांस का सेंट साइमन। ऑप्शन 3 है साइमन बोलीवार। ऑप्शन 4 है थॉमस मोरे। ऑप्शन सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन सही है फ्रांस का सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1500 से 1800 के दौरान मरकज़ी और जनूबी अमेरिका के अक्सर इलाके इन यूरोपीय ममालिक के कंट्रोल में आ गए हैं। ऑप्शन 1 है फ्रांस और स्पेन। ऑप्शन 2 है स्पेन और पुर्तगाल। ऑप्शन 3 है फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन 4 है जर्मनी और पुर्तगाल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्बज़ैल में से कौन सी वेद ने भजनों और देवताओं के क़साइद पर बुनियादी तौर पर तवज्जो दी। यानी भजनों यानी उनके देवताओं के बारे में कुछ गाने वाए गाते ना, क़साइद यानी क़सीदे वाए पढ़ते ना, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। हस्बज़ैल में कौन सी वेद ने यानी कौन सी वेद वाले ये भजन और देवताओं के बारे में गाने वगैरह पढ़ते हैं। और लोगों ज़्यादा किस पे तवज्जो मतलब कौन से वेद वाले तवज्जो दिए। ऑप्शन आगे सामवेद। ऑप्शन 2 है यजुर्वेद। ऑप्शन 3 है अथर्ववेद। ऑप्शन 4 है ऋग्वेद। ऑप्शन 4 ऋग्वेद सही आंसर है।
نیکسٹ کوشچن، قدیم سلطنت اشماکا ہندوستان کے اس حصے میں موجود ہے۔ اشماکا کس حصے میں موجود ہے ہندوستان کے، وہ پوچھ رہا ہے یہاں پہ۔ آپشن 1 ہے شمالی ہند، آپشن 2 ہے جنوبی ہند، آپشن 3 ہے مشرقی ہند، آپشن 4 ہے مغربی ہند۔ آپشن دوسرا صحیح آنسر ہے جنوبی ہند، ساؤتھن انڈیا۔ اب آگے نیکسٹ کوشچن، اس مغل بادشاہ نے قطب شاہی بادشاہ ابو الحسین تاناشاہ کو گرفتار کیا۔ کون سے بادشاہ؟ مغل بادشاہ قطب شاہی بادشاہ ابو الحسین تاناشاہ کو گرفتار کیا۔ تاناشاہ کو کون سے بادشاہ گرفتار کیا وہ پوچھ رہا ہے یہاں پہ۔ آپشن 1 ہے شاہجہاں، آپشن 1 ہے شاہجہاں، آپشن 2 ہے اورنگزیب، آپشن 2 کیا ہے اورنگزیب ہے، آپشن 3 کیا ہے اکبر، آپشن 4 ہے جہانگیر۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے اورنگزیب، آپشن 2 صحیح آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن، 9 دسمبر 2009 کو اس رہنما نے تلنگانہ کے بارے میں اعلان کیا۔ آپشن 1 ہے پرانب مکھرجی، آپشن 2 ہے پی چدمبرم، آپشن 3 ہے سونیا گاندھی، آپشن 4 ہے جے رام رمیش۔ آپشن 2 صحیح ہے پی چدمبرم، آپشن 2 صحیح ہے پی۔ اب نیکسٹ کوشچن، کومن ٹانگ کے ایم ٹی نے ان کے نظریے پر مشتمل سیاسی فلسفے کی پیروی کی۔ آپشن 1 ہے سن یات سین، آپشن 2 ہے چیانگ کائی شیک، آپشن 3 ہے ماؤ زے ڈونگ، آپشن 4 ہے ہو جنٹاؤ۔ آپشن فرسٹ کریکٹ آنسر ہے سن یات سن۔ تھوڑا مشکل ہے یہ پڑھنا، لیکن یاد رکھنا مشکل ہے، اس کو ہم لوگ اچھے سے 1 سے 2 بار پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن، عام طور پر پریوراجا کاس نے ایسی زندگی گزاری۔ آپشن 1 ہے مستقل بستیوں میں، آپشن 2 ہے گاؤں گاؤں گھومتے ہوئے، آپشن 3 ہے آشرموں میں، آپشن 4 ہے شاہی محل میں۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے گاؤں گاؤں گھومتے ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے، ہندوستان میں کرپس مشن کا بنیادی مقصد۔ آپشن 1 ہے جاپان کے ساتھ امن کی بات چیت کرنا، آپشن 2 برطانیہ کی جنگ کی کوشش کے لیے تائید حاصل کرنا، آپشن 3 ہے ہندو و مسلم اتحاد کو فروغ دینا، آپشن 4 ہے ہندوستان کو مکمل آزادی دینا۔ آپشن 2 صحیح آنسر ہے برطانیہ کی جنگ کی کوشش کے لیے تائید حاصل کرنا۔ نیکسٹ سوال، حزب دل میں سے قانونی ادارے کی شناخت کیجیے۔ آپشن 1 ہے قومی انسانی حقوق کمیشن، آپشن 2 ہے الیکشن کمیشن، آپشن 3 ہے یونین پبلک سروس کمیشن، آپشن 4 ہے فائنانس کمیشن۔ آپشن فرسٹ کریکٹ آنسر ہے قومی انسانی حقوق کمیشن، قومی انسانی حقوق کمیشن صحیح آنسر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، حزب دل میں سے صدر جمہوریہ ہند کے اختیار کو شناخت کیجیے۔
ऑप्शन 1 है राज्यसभा और रियासती कानूनी साज कौंसिलों की तहलील करना। ऑप्शन 2 है पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास को तलब करता है। ऑप्शन 3 है लोकसभा के 12 अरकान को नामजद करता है। ऑप्शन 4 है ये तय करता है कि कोई बिल रकमी बिल है या आम बिल। ऑप्शन 2 सही आंसर है पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास को तलब करता है। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। रवि कई साल से अपने वालिद की जानिब से जिम्मेदार से ली गई कर्ज की रकम के अवज़ बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम कर रहा है। ये इस बुनियादी हक के खिलाफ वर्जी है। ऑप्शन 1 है हक़ मसावत। ऑप्शन 2 है हक़ आज़ादी। ऑप्शन 3 है इस्तेसाल के खिलाफ हक़। ऑप्शन 4 है दस्तूरी चाराजोई के खिलाफ हक़। ऑप्शन 3 सही आंसर है इस्तेसाल के खिलाफ हक़। नेक्स्ट सवाल, इमरजेंसी के दौरान जुमले या कोई भी बुनियादी हुकूक को सदर जमहूरिया हिंद मुअत्तल कर सकता है सिवाय। ऑप्शन 1 है दस्तूर की दफ़ा 20 और 21। ऑप्शन 2 है दस्तूर हिंद की दफ़ा 21। ऑप्शन 3 है सिर्फ दस्तूर हिंद की दफ़ा 19। ऑप्शन 4 है दस्तूर हिंद की दफ़ा 19-21। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है दस्तूर की दफ़ा 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बजल में से कौन से इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी में शुमार नहीं होते। ऑप्शन 1 है हक़ मालूमात से इनकार। ऑप्शन 2 है जराइम की तहक़ीक़ात में ताख़ीर। ऑप्शन 3 है ख़ानदान में औरतों के खिलाफ जानदारी बरतना। ऑप्शन 4 है सरकारी शोबे में हुकूमत की जानिब से रोज़गार फराहम ना करना। ऑप्शन 4 सही आंसर है सरकारी शोबे में हुकूमत की जानिब से रोज़गार फराहम ना करना। नेक्स्ट सवाल, दस्तूर हिंद में इस तरमीम के ज़रिए शहरियों के बुनियादी फ़राइज़ की फ़हरिस्त को शामिल किया गया। ऑप्शन 1 है 42वीं तरमीम। ऑप्शन 2 है 44वीं तरमीम। ऑप्शन 3 है 61वीं तरमीम। ऑप्शन 4 है 52वीं तरमीम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है 42वीं तरमीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी आईने के ये दफ़ा इस बात को बयान करती है कि किसी भी शख्स को इसकी ज़िंदगी या शख्सी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय क़ानून के ज़रिए क़ायम करदा तरीक़ेकार के। ऑप्शन 1 है दफ़ा 19। ऑप्शन 2 है दफ़ा 21। ऑप्शन 3 है दफ़ा 22। ऑप्शन 4 है दफ़ा 23। ऑप्शन 2 सही आंसर है दफ़ा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तूर का दिबाचा ज़ाहिर करता है। ऑप्शन 1 है एक शहरी के बुनियादी फ़राइज़। ऑप्शन 2 है मक़ासिद फ़लसफ़े और अक़राद। ऑप्शन 3 है हैरत पसंदी के उसूल। ऑप्शन 4 है इनफ़रादी हुकूक। ऑप्शन 2 सही आंसर है मक़ासिद फ़लसफ़े और अक़राज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल में से बैंकों में रकम के महफूज ज़ख़ीरे के बारे में दुरुस्त बयान कीजिए। ऑप्शन 1 है बैंक कोई नकदी नहीं रखते। ऑप्शन 2 है बैंक जमा शुदा रकम का छोटा सा हिस्सा नकदी के तौर पर रखते हैं। ऑप्शन 3 है बैंक जुमला जमा शुदा रकम नकदी के तौर पर रखते हैं। ऑप्शन 4 है बैंक जुमला जमा शुदा रकम को मशगूल रखते हैं। ऑप्शन 2 सही आंसर है बैंक जमा शुदा रकम का छोटा सा हिस्सा नकदी के तौर पर रखते हैं। नेक्स्ट सवाल, बैंकों की जानिब से दिए जाने वाले कर्ज के सूद की शरह और जमा शुदा रकम पर पेशकश किए जाने वाले सूद की शरह में आम तौर पर क्या रिश्ता पाया जाता है। ऑप्शन शरह सूद एकसा होती है। ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 आगे शरह सूद एकसा होती है। ऑप्शन 2 है बैंकों की जानिब से जमा शुदा रकम पर आला शरह सूद दिया जाता है। ऑप्शन 3 है बैंक कर्ज़ों पर कम शरह सूद आयद करते हैं। ऑप्शन 4 है बैंक कर्ज़ों पर आला शरह सूद आयद करते हैं। चौथा आंसर सही है बैंक कर्ज़ों पर आला शरह सूद आयद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा ज़ैल ग़िज़ाई अशिया में ये शय ग़िज़ाई नरक़नामा के अशारिये FPI में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 है मशरूबात। ऑप्शन 2 है गेहूँ। ऑप्शन 3 है दालें। ऑप्शन 4 है चावल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है मशरूबात।